Hello, everyone, and welcome to Mentor's Galaxy. This is Pratiksha Roy, your chemistry mentor. We have already started our chapter series, and for chemistry, I have started with some basic concepts in chemistry, जो कि है आपके क्लास 11 का पहला chapter. We have already completed a lot of lectures and covered a lot of topics. हमने मैटर एंड इट्स प्रॉपर्टीज से शुरू किया था, मूविंग ऑन टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, मोल कॉन्सेप्ट, स्टोइशियोमेट्री, लिमिटिंग रिएजेंट, बहुत कुछ हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. Please check out our channel because you will find a complete playlist of this series of some basic concepts in chemistry, जहाँ पे आपको सारे वीडियोस कॉन्सेप्ट आपको सीक्वेंशियल ऑर्डर में मिलेंगे एंड आपको स्टडी करने में इजी रहेगा. So the last video I made was on mole concept and its applications. उसके बाद stoichiometry, limiting reagent and some other topics I have previously discussed. So we have added those video in the playlist. So if you have any doubts, you can always check those videos out. So today we are at our 10th lecture for this chapter where we will discuss concentration percentages and mole fraction. So let us begin today's lesson. Contents देख लेते हैं. We will start with an introduction to concentration terms. कि जो concentration terms है उसका क्या मतलब है, followed by concentration percentages. कि इन्हीं concentrations को हम percentage form में कैसे express करें. And lastly we have mole fraction which is a very important topic. इस topic से आपको कई questions competitive exams में भी देखने को मिलेंगे. So this is a very important topic that we will cover in today's video. So let us begin today's discussion on concentration percentages and mole fraction. तो आज का हमारा पहला सवाल ये उठता है कि concentration terms जो है उसका क्या मतलब है. What are concentration terms? Concentration terms pertain to reactions that are carried out in solutions. Solution is a homogeneous mixture. Homogeneous mixture को हम solution कहते हैं. ये हमने first lecture में discuss किया था. We already have an entire playlist of the solutions chapter in Mentor's Galaxy taught by Shruti ma'am. Please go check it out. So ये जो concentration terms है ये हम solutions के related जो questions होते हैं या फिर solution के related जो concepts होते हैं उसमें हम apply करते हैं. A solution is a homogeneous mixture. ये हम already जानते हैं क्योंकि हमने first lecture में ये discuss कर लिया था. The solution is a homogeneous mixture which is composed of a solute. एक solute रहता है जो usually solid होता है, liquid भी हो सकता है लेकिन mostly वो solid होता है, and a solvent which is usually a liquid. A simple sugar solution is also a solution जहाँ पे आपका solute हो जाता है sugar and solvent रहता है water. So sugar plus water is a solution. जहां शुगर है हमारा सल्यूट एंड वाटर इज आवर सॉल्वेंट. सो दिस इज जस्ट अ सिंपल एग्जांपल. हमने सॉल्यूशंस के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था लेक्चर 1 में एंड वी ऑलरेडी हैव एन एंटायर प्लेलिस्ट ऑफ द सॉल्यूशंस चैप्टर. तो अब ये कॉन्सेंट्रेशन, ये जो वर्ड है कॉन्सेंट्रेशन, इसको हम एक दूसरा मीनिंग है मतलब ध्यान लगा के कुछ करना. कॉन्सेंट्रेशन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम. But this meaning of concentration जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे that is different. The amount of solute that is present in a given amount of solution is known as the concentration of the solution. कि एक solution में जो solute है वो कितने quantity में present है. The amount of solute that is present in a solution is concentration. तो यहाँ पे हम amount of solute के बारे में deal करेंगे कि एक सिंपल शुगर सोल्यूशन में कितना चीनी आपने डाला है, क्या अमाउंट ऑफ सल्यूट आपने डाला है, दैट विल डिटरमाइन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन. अगर आपने ज्यादा चीनी डाल के सोल्यूशन बनाया है देन द सोल्यूशन विल बी वेरी स्वीट, बहुत ज्यादा मीठा होगा. और अगर आपने कम चीनी डाली है देन द सोल्यूशन विल नॉट बी दैट स्वीट. सो द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन विल डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ
solute. The solvent is usually present in bulk. बल्क मतलब जब कुछ ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट रहता है तो उसको हम कहते हैं बल्क. बल्क फेज मतलब मोर क्वांटिटी और हाई क्वांटिटी. हाई क्वांटिटी मीन्स बल्क. while the solute is present in lesser quantities. हम जानते हैं किसी भी सोल्यूशन में जो सॉल्वेंट रहता है जिसमें हम डिसॉल्व करते हैं किसी सोल्यूट को, वो हमेशा ज्यादा क्वांटिटी में रहता है और जो सोल्यूट रहता है वो कम क्वांटिटी में रहता है. इसलिए सोल्यूट का अमाउंट जो है वही कॉन्सेंट्रेशन को डिटरमाइन करता है. तो लिमिटिंग रिएजेंट में भी हमने देखा था कि जो अमाउंट में जो रिएक्टेंट या फिर जो सब्सटेंस कम अमाउंट में रहता है वही डिटरमाइन करता है. तो यहाँ पे भी कॉन्सेंट्रेशन को कौन डिटरमाइन करेगा? सल्यूट डिटरमाइन करेगा, क्योंकि सल्यूट जो है वो कम अमाउंट में रहता है एक सोल्यूशन में. सो सल्यूट विल डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन और द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन. सो ये एक डायग्राम है विच इज फॉर योर रेफरेंस ओनली. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे वाटर प्रेजेंट है एज अ सॉल्वेंट. वाटर इज द सॉल्वेंट इन बोथ द केसेस. और ये जो पार्टिकल्स है ये है सल्यूट पार्टिकल्स. ये है सल्यूट पार्टिकल्स. यहाँ पे भी पार्टिकल्स है, ये भी है हमारे सल्यूट पार्टिकल्स. सो इन द लेफ्ट डायग्राम हम देख सकते हैं कि सल्यूट का जो क्वांटिटी है बहुत कम है. सेम वाटर लेवल है दोनों में. H2O का जो अमाउंट है, सॉल्वेंट का अमाउंट वो ज्यादा है, दोनों में सेम है. लेकिन जो सल्यूट है वो डिफरेंट है. लेफ्ट वाले डायग्राम में या फिर लेफ्ट वाले सोल्यूशन में सल्यूट इज लेस एंड राइट वाले डायग्राम में सल्यूट इज मोर. तो जिस सोल्यूशन में सल्यूट का अमाउंट कम रहेगा उसको हम कहेंगे डाइल्यूट सोल्यूशन, और जिस सोल्यूशन में सल्यूट का अमाउंट ज्यादा रहेगा उसको हम कहेंगे कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन. So I think about all this you already know. Those who have already seen and studied the solutions chapter, they are very much well aware of this. So very basic concept you have learned it in your previous classes also कि जिस solution में solute का amount कम रहेगा वो होगा हमारा dilute solution, और जिस solution में solute का amount ज्यादा रहेगा वो हो जाएगा हमारा concentrated solution. तो ये dilute और concentrated ये words बहुत important है. जब भी आपको सुनने को मिलेगा डाइल्यूट सोल्यूशन, यू विल इमीडिएटली अंडरस्टैंड दैट द अमाउंट ऑफ सोल्यूट वाज लेस, दैट इज व्हाई इट इज डाइल्यूट सोल्यूशन. और अगर कोई आपको बताए कि आप एक कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन बनाइए शुगर का, तो उसमें आप क्या करेंगे? सोल्यूट का अमाउंट ज्यादा होगा, मतलब ज्यादा शुगर आपको डालनी पड़ेगी, सो द सोल्यूशन विल बी कॉन्सेंट्रेटेड. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन. अब इस कॉन्सेंट्रेशन को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे वो देखते हैं. द अमाउंट ऑफ सल्यूट दैट इज प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सोल्यूशन इज नोन एज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन. हमने ये डेफिनेशन ऑलरेडी पढ़ लिया है. इसको अब हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? अमाउंट ऑफ सल्यूट. अब सल्यूट अगर सॉलिड फॉर्म में है तो यूजुअली हम सॉलिड फॉर्म को मेजर करने के लिए उसका मास या फिर उसका वेट मेजर करते हैं. तो ये जो अमाउंट ऑफ सल्यूट है ये यूजुअली हो जाएगा सल्यूट का मास या फिर वेट. केमिस्ट्री के लिए मैंने पहले भी मेंशन किया था, वेट और मास को हम सेम पकड़ के चलते हैं, दिस इज नॉट फिजिक्स. तो यहाँ पे हम जो ग्रेविटी mg w इक्वल्स टू mg वो इतना सब कुछ हम अप्लाई नहीं करेंगे. मास और वेट का केमिस्ट्री में मीनिंग ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा अगर मेंशन अलग से ना किया गया हो. सल्यूट आप याद रखिएगा क्योंकि सल्यूट यूजुअली सॉलिड रहता है. सॉलिड चीजों का हम जब मेजर करते हैं हम यूजुअली उसका वजन चेक करते हैं. तो द अमाउंट ऑफ सल्यूट, ये जो अमाउंट है किसका अमाउंट होगा? उसका मास या फिर उसके वेट का, जितना आप यूज कर रहे हो. तो कैसे यूनिट्स होते हैं मास के? वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन आवर फर्स्ट लेक्चर ग्राम, किलोग्राम, एंड वी ऑल्सो हैव मोल्स नाउ. हमने मोल्स के बारे में भी पढ़ लिया है. सो मोल्स इज ऑल्सो अ यूनिट टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ अ सल्यूट डिवाइडेड बाय द अमाउंट ऑफ सोल्यूशन. अब सोल्यूशन जो है जो यूजुअली लिक्विड रहता है, सो इसका हम क्या लेंगे? यूजुअली वॉल्यूम या फिर हम मास भी ले सकते हैं.
किसी लिक्विड पैरामीटर को हम अगर मेजर करना चाहे तो हम यूजुअली वॉल्यूम को मेजर करते हैं, या फिर हम मास को भी मेजर कर सकते हैं। इसके जो यूनिट्स होंगे वो इधर वॉल्यूम के यूनिट्स होंगे या फिर मास के यूनिट्स होंगे। वॉल्यूम के लिए लीटर और मिलीलीटर, और मास के लिए ग्राम्स और किलोग्राम्स। दिस वी ऑलरेडी नो। तो कितने अमाउंट ऑफ सोल्यूशन में कितना सल्यूट प्रेजेंट है, वही है हमारा कॉन्सेंट्रेशन। वही है हमारा कॉन्सेंट्रेशन। सो इट विल बी द अमाउंट ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय द अमाउंट ऑफ सोल्यूशन, कि टोटल इतने सोल्यूशन में कितना हमारा सल्यूट है, उसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमको कॉन्सेंट्रेशन मिल जाएगा। एंड जो यूनिट्स रहेंगे, जो अमाउंट में हम मेजर करेंगे, वही यूनिट्स फाइनल होंगे। हम देखेंगे इसके सब्सिक्वेंट टॉपिक्स, बट फॉर नाउ concentration is represented as the amount of solute divided by the total amount of solution. So this is the formula which is very important for your concept building. One of the simplest concentration terms, सबसे जो simple concentration term है वो है हमारा grams per liter. क्यों ग्राम्स पर लीटर सबसे सिंपल कॉन्सेंट्रेशन टर्म है? क्योंकि जो सल्यूट है वो हम अज्यूम कर रहे हैं कि वो एक सॉलिड है, एंड सॉलिड्स को हम ग्राम्स में मेजर करते हैं, उसका मास हम ग्राम में मेजर कर रहे हैं, तो सल्यूट इज इन ग्राम्स। और जो सोल्यूशन है वो लिक्विड स्टेट में है, तो इसका जो हम वॉल्यूम है वो मेजर कर रहे हैं, जो कि है लीटर में। सो यहाँ पे हमने कौन से यूनिट्स यूज किए? यहाँ पे हमने ग्राम्स यूज किए एंड लीटर्स यूज किए। सो दिस इज द सिंपलेस्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म विच इज ग्राम्स पर लीटर, कि कितने लीटर सोल्यूशन में कितने ग्राम्स ऑफ सोल्यूट है। 1 लीटर सोल्यूशन में कितने हैं, 2 लीटर सोल्यूशन में कितने हैं? सॉरी, दिस विल नॉट बी सॉल्वेंट, दिस विल बी सोल्यूशन। कि कितने सोल्यूशन में 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर, उसमें कितना ग्राम सोल्यूट है? 2, 5, 10 एनी ग्राम्स ऑफ सोल्यूट, एंड दैट विल गिव यू योर कॉन्सेंट्रेशन। तो ये है सबसे सिंपल, सबसे इजी समझने के लिए भी और कैलकुलेशंस के लिए भी सबसे इजी जो टर्म है वो है हमारा ग्राम्स पर लीटर। इसको ऐसे G/L और GL⁻⁻1 करके आप डिनोट कर सकते हो। इट इंडिकेट्स द अमाउंट ऑफ सल्यूट इन ग्राम्स present in 1 liter of the solution. Obviously, अगर डिनोमिनेटर आपका 1 रहेगा, like 5 grams divided by 1 liter will be 5 gram per liter. तो concentration of the solution will be 5 ग्राम पर लीटर। अगर मैंने 1 लीटर के सोल्यूशन में 5 ग्राम मैंने अगर सल्यूट डाला है, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा 5 ग्राम्स पर लीटर। तो ये इंडिकेट करता है कि 1 लीटर सोल्यूशन में हमारा अमाउंट ऑफ सल्यूट कितना है। सो दिस इज व्हाट इट डिनोट्स, ग्राम पर लीटर का डिनोट करता है, इसका सिग्निफिकेंस है कि 1 लीटर सोल्यूशन में कितना सल्यूट प्रेजेंट। फ्रॉम एनी गिवन वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन, अमाउंट ऑफ सल्यूट प्रेजेंट कैन बी कैलकुलेटेड इन ग्राम्स पर लीटर। कोई भी गिवन वॉल्यूम रहे सोल्यूशन का, आप उसका कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं इन ग्राम्स पर लीटर। Suppose in 2 liters we have 10 grams, कि हमारा एक सोल्यूशन है जो है 2 लीटर है टोटल वॉल्यूम सोल्यूशन का, और उसमें मैंने मिक्स किया था सॉल्यूट जब वो था 10 ग्राम्स। तो कॉन्सेंट्रेशन कितना होना चाहिए? 10 ग्राम्स बाय 2 liters विच विल बी 5 ग्राम्स पर लीटर। यहाँ पे भी वैल्यू सेम था, 5 ग्राम पर लीटर, यहाँ पे भी सेम है। तो यहाँ पे 2 लीटर के लिए 10 ग्राम्स था, तो 1 लीटर के लिए इट शुड बी 5 ग्राम्स। तो 5 ग्राम पर लीटर ही है उसका कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन ऑलवेज हम पर लीटर 1 लीटर के रेस्पेक्ट में निकालेंगे। कॉन्सेंट्रेशन ऑलवेज विथ रेस्पेक्ट टू 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो कॉन्सेंट्रेशन को हम हमेशा 1 लीटर सोल्यूशन के रेस्पेक्ट में निकालेंगे। तो अगर एक से ज्यादा कोई वॉल्यूम है, 2 लीटर्स, 5 लीटर्स, 10 लीटर्स, उसको हम सिंपली डिवाइड करके हम 1 लीटर का जो सोल्यूट अमाउंट है वो निकाल सकते हैं, एंड दैट विल बी आवर कॉन्सेंट्रेशन। दीज आर वेरी इजी कॉन्सेप्ट,
but still you should learn this because this will help you in further chapters. जैसे सोल्यूशन के चैप्टर में अगर ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है तो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में दिक्कत होगी. सो दीज आर वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट्स बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं जब हम डिस्कस कर ही रहे हैं. अंडरस्टैंड एनी फॉर्मूला, हमेशा हम एग्जांपल्स के साथ स्टडी करें तो वो ज्यादा हमारे ब्रेन में रजिस्टर होता है. तो ऑलवेज आप एग्जाम में भी, जब आपके नॉट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इन योर स्कूल एग्जाम्स, आप हमेशा डेफिनेशंस के साथ अगर एग्जांपल्स भी दे तो द एग्जामिनर फाइंड्स इट गुड. ऑलवेज ट्राई टू गिव सम और द अदर एग्जांपल्स इफ यू नो. So for example, 10 ग्राम पर लीटर aqueous solution of sugar. तो यहाँ पे बहुत कुछ मेंशन है एक ही सेंटेंस में. पहला तो कॉन्सेंट्रेशन दिया गया है 10 ग्राम पर लीटर aqueous solution of sugar. तो यहाँ पे हमको ऑब्वियसली समझ में आ रहा है जो शुगर जो है हमारा सल्यूट है. aqueous मतलब क्या है? पानी है. तो सॉल्वेंट जो है हमारा वाटर है. एक ही सेंटेंस में से हमें कितने सारे इंफॉर्मेशन मिल गए. सॉल्वेंट पता चल गया वाटर है, सल्यूट पता चल गया शुगर है, और उसका कॉन्सेंट्रेशन भी, सोल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन के बारे में भी हमको पता चल गया. तो इसका क्या मतलब है कि द सल्यूट इन दिस सोल्यूशन इज शुगर एंड द सॉल्वेंट इज वाटर, where 10 gram of sugar is present in 1 liter of the solution और 10 gram of sugar is present in 1000 ml of the solution. तो बहुत ही इजी सेंटेंस है. इस एक सेंटेंस को अगर आप ब्रेक करके समझे तो इसमें हम देख सकते हैं कि जो सोल्यूशन बना है उसमें सल्यूट जो डाला गया है वो है शुगर और सॉल्वेंट है हमारा पानी. और कैसे हमने मिक्स किया है? हमने 10 ग्राम शुगर मिलाया है 1 लीटर सोल्यूशन में. मतलब ऑब्वियसली पानी का लेवल ऑलमोस्ट 1 लीटर था, उसमें हमने 10 ग्राम शुगर मिलाया एंड वी विल गेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 10 ग्राम पर लीटर. 1 liter solution मतलब 1000 ml of the solution. We know this. So 10 gram per liter means 10 grams of sugar in 1 liter of solution. Again another example, 25 gram per liter aqueous solution of NaCl. Similarly यहाँ पे सल्यूट हो जाएगा हमारा NaCl. सॉल्वेंट फिर से हमारा है पानी, यूनिवर्सल सॉल्वेंट. तो इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या हमें समझ में आ रहा है कि 1 लीटर सोल्यूशन में हमने अब डाला है 25 ग्राम ऑफ NaCl. सोडियम क्लोराइड हमने 25 ग्राम डाला है इन 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन और 25 ग्राम इन 1000 ml ऑफ सोल्यूशन, 1000 मिलीलीटर्स ऑफ द सोल्यूशन. So this is very easy, very simple to understand. This is basically how to understand the concentration term. कि अगर आपको एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म दिया गया है तो उसका क्या मीनिंग है, इसलिए मैंने ये एग्जांपल्स आपको दिया है सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड. सो नाउ लेट अस सी अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन. ये क्वेश्चन इतना इजी है कि ऐसे क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आपके किसी भी एग्जाम के लिए. बट आई एम गिविंग दिस क्वेश्चन जस्ट टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट. अगर आपका कॉन्सेप्ट, दैट्स व्हाई वी ऑलवेज, वी एवरीवन एट मेंटर्स गैलेक्सी, वी ऑलवेज फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट बिल्डिंग फर्स्ट. फिर हम आपको क्वेश्चंस भी सॉल्व कराएंगे फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप कहीं भी अटक सकते हो. इफ यू गेट स्टक समवेयर एंड यू नो द कॉन्सेप्ट देन ऑल्सो यू कैन फाइंड द सोल्यूशन. सो क्लियरिंग द कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि अ सोल्यूशन हैविंग अ वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर्स has 40 gram of solute present in it. What is the concentration of the solution in gram per liter? इससे आसान क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता. इतना इजी क्वेश्चन है कि 10 लीटर है हमारा सोल्यूशन, 40 ग्राम उसमें हमने डाला था सोल्यूट. कॉन्सेंट्रेशन कितना होना चाहिए? हमें ऑलरेडी फॉर्मूला पता है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट बाय अमाउंट ऑफ सोल्यूशन. तो सोल्यूट यहाँ पे ग्राम में है ऑलरेडी गिवन एंड सोल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो भी लीटर्स में ही प्रेजेंट है. तो सिंपली डिवाइड 40 बाई 10, इट इज 4 ग्राम पर लीटर. इसका मतलब क्या है? 1 लीटर सोल्यूशन में 4 ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट है. ये आपको ध्यान रखना है कि ये सारे जो कैलकुलेशंस है, जो लॉजिक है, ओनली अप्लाइज फॉर सॉल्यूशंस दैट इज होमोजीनियस मिक्सचर, क्योंकि उसमें सल्यूट और सॉल्वेंट यूनिफॉर्मली मिक्स होते हैं.
हेट्रोजेनस जो मिक्सचर्स है उसके लिए सारे लॉजिक काम नहीं करेंगे, तो आपको पूछा भी नहीं जाएगा, लेकिन आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि ये जो हम लॉजिक अप्लाई कर रहे हैं, आराम से हम यूनिटरी मेथड अप्लाई करके डिवाइड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ओनली बिकॉज द सोल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर। सारे पार्ट्स उसमें इक्वल है, दैट इज व्हाई वी कैन सॉल्व इट लाइक दिस। सो दिस इज अ पॉइंट टू बी केप्ट इन योर माइंड। सो वेरी सिंपल कैलकुलेशन, मतलब हमें पता चल रहा है कि 1 लीटर में सोल्यूशन में 4 ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट है, इसलिए 10 लीटर सोल्यूशन में 40 ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट होंगे। हमने बैक कैलकुलेशन करके निकाला है। So similarly, another question number 2, a solution having a volume of 400 ml has 10 gram solute present in it. What is the concentration of the solution in gram per liter? तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्टेप हमको करना है कि यहाँ पे ये जो मिलीलीटर्स है इसको कन्वर्ट करना है लीटर में, अदरवाइज इट इज द सेम क्वेश्चन एज द लास्ट वन। तो इसलिए आपको यूनिट कन्वर्जन आना चाहिए, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था लेक्चर 2 में शायद। यू कैन ऑलवेज विजिट योर प्रीवियस वीडियोस एंड चेक। मुझे ही याद नहीं रह रहा तो आपको तो आपके भूलने के चांसेस भी है, सो यू कैन गो एंड चेक इट आउट। सो यूनिट कन्वर्जन भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं उसका एप्लीकेशन कहीं ना किसी क्वेश्चन में जरूर हुआ है। सो इट इज इम्पोर्टेंट टू स्टडी ऑल द टॉपिक्स केयरफुली। तो यहाँ पे हम मिलीलीटर्स को लीटर्स में कन्वर्ट करेंगे, फिर आराम से डिवाइड कर देंगे। 400 ml ऑफ द सोल्यूशन इज 0.4 लीटर ऑफ द सोल्यूशन। हमें पता है 1 लीटर इज 1000 ml, so 1 ml will be 1/1000 liters and 400 ml will be 1/1000 into 400, which will be 0.4 liter of the solution. मैंने ये भी आपको सॉल्व करके दिखा दिया। इफ एनीबडी हैड एनी डाउट्स, आई होप इट इज क्लियर नाउ कि कैसे हम मिलीलीटर से लीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसमें डाउट होना तो नहीं चाहिए, लेकिन इफ यू स्टिल हैव इट, आई होप इट इज क्लियर नाउ। तो नाउ वी नो द वॉल्यूम, हमें वॉल्यूम पता चल गया है 0.4 लीटर। हमें अमाउंट ऑफ सल्यूट भी पता है 10 ग्राम्स। तो अब आराम से डिवाइड करके फटाफट हम निकाल देंगे इसका कॉन्सेंट्रेशन। 10/0.4 is 25 ग्राम पर लीटर। दैट मीन्स 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में सल्यूट रहेगा हमारा 25 ग्राम ऑफ सल्यूट। अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन, बट यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है कि 400 ml में 10 ग्राम था। ये शायद आप इमेजिन नहीं कर सकते 400 ml में 10 ग्राम है, बट आफ्टर सॉल्विंग वी सी दैट द कॉन्सेंट्रेशन इज 25 ग्राम पर लीटर। मतलब हाँ, 1 लीटर में हमारा 25 ग्राम ऑफ सल्यूट प्रेजेंट है। So these were the definitions and the simplest form of concentration terms. I hope now it is clear कि concentration का मतलब क्या है और concentration को हम easy तरीके में कैसे निकालते हैं। अब हम देखेंगे कि concentration को, इसी ग्राम पर लीटर को हम परसेंटेज में कैसे निकाल सकते हैं। What are concentration percentage? ये concentration percentage क्या है? So let us begin with this new topic. Concentration percentages denote the amount of solute. Obviously concentration हमेशा amount of solute को ही denote करेगा in 100 units of a solution. यहाँ पे कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट आ गया है कि यहाँ पे अमाउंट ऑफ सोल्यूशन हम नहीं कर रहे, हम 100 यूनिट्स सोल्यूशन कर रहे हैं। अब ये यूनिट्स क्या है, कौन से यूनिट्स है, मास का यूनिट है, वॉल्यूम का यूनिट है, किसका यूनिट है, वो हम देखेंगे। लेकिन यहाँ पे टोटल सोल्यूशन हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम सिर्फ 100 पार्ट्स या फिर 100 यूनिट कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि ये है परसेंटेज। परसेंटेज में हमेशा हम 100 को कंसिडर करते हैं जो टोटल परसेंटेज रहता है, इसलिए हम यूनिट जो सोल्यूशन है उस टोटल सोल्यूशन को हम 100 मान के चलेंगे। Concentration obviously is the amount of solute, but here the amount of solution changes to 100 units. The 100 units of the solution may be mass units or volume units. कि हमको पता नहीं है कि ये मास की यूनिट्स है या फिर वॉल्यूम की यूनिट्स है, वो हम देखेंगे अभी थोड़ी देर में।
तो इट कैन बी मास के यूनिट्स ऑल्सो और वॉल्यूम के यूनिट्स ऑल्सो, लेकिन इट विल 100 का जो वैल्यू रहेगा वो रहेगा 100 डिपेंडिंग अपॉन द यूनिट्स। अब ये जो यूनिट है इस पे डिपेंड करेगा ऑब्वियसली। कॉन्सेंट्रेशन परसेंटेजेस में बी क्लासिफाइड एज मास परसेंट, मास बाय मास वॉल्यूम परसेंट which is mass by volume, और वॉल्यूम परसेंट which is वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो हम ये जो यूनिट है, अमाउंट ऑफ सल्यूट हम कौन से यूनिट में ले रहे हैं, या फिर ये जो सोल्यूशन का 100 यूनिट है वो कौन सा यूनिट है, मास का या वॉल्यूम का, इस पर डिपेंड करके 3 टाइप ऑफ कॉन्सेंट्रेशन परसेंटेजेस रहते हैं, मास परसेंट, मास वॉल्यूम एंड वॉल्यूम। तो चलिए देखते हैं पहले हमारा मास परसेंट और मास बाय मास परसेंट, एम बाय एम परसेंट। मास परसेंट इज द अमाउंट ऑफ सल्यूट in terms of mass which is present in 100 parts in terms of mass of the solution। तो यहाँ पे मास बाय मास मतलब जो दो अमाउंट है दोनों को ही हम मास में कंसिडर करेंगे। सल्यूट का भी मास कंसिडर करेंगे और सोल्यूशन का भी मास कंसिडर करेंगे, लेकिन 100 पार्ट्स। टोटल जो मास है हमें दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है कि कितना है उसका मास। जो भी मास है उसका हम 100 पार्ट्स ही कंसिडर करेंगे, लेकिन जो यूनिट रहेगा वो मास का यूनिट होगा। दैट इज व्हाई इट इज मास बाय मास, एम बाय एम परसेंट। It is a way to express the concentration of a component in a solution by its mass relative to the total mass of the solution। तो यहाँ पे हम जो concentration निकाल रहे हैं वो मास के रेस्पेक्ट में मास के साथ ही कंपेयर करके निकाल रहे हैं। तो दिस इज अ मास रिलेटिव टू द टोटल मास ऑफ द सोल्यूशन। सोल्यूशन का भी मास कंसिडर कर रहा है और सल्यूट का भी मास। ग्राम्स पर लीटर में हमने क्या किया था, हमने सल्यूट तो मास कंसिडर किया था, लेकिन सोल्यूशन का हमने वॉल्यूम कंसिडर किया था। तो यहाँ पे हमने सोल्यूशन का मास कंसिडर किया है, सो इट इज मास परसेंट। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन मास ऑफ द सल्यूट एंड द सोल्यूशन। मास हम जानते हैं टेम्परेचर के साथ मास का कोई रिलेशन है नहीं, तो इसलिए मास परसेंट का भी टेम्परेचर के साथ कोई रिलेशन नहीं है। इट विल बी इंडिपेंडेंट, क्योंकि सल्यूट और सोल्यूशन दोनों का हम मास कंसिडर कर रहे हैं। वॉल्यूम का जैसे एक रिलेशन रहता है टेम्परेचर के साथ, लेकिन मास का जो है कोई रिलेशन ही नहीं है टेम्परेचर के साथ, सो इट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। तो हम मास परसेंट निकालते कैसे हैं, लेट्स कम टू द फॉर्मूला। मास परसेंट इज द मास ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। तो ये 100 पार्ट्स में निकालने के लिए हम टोटल का डिवाइड करके इनटू 100 करेंगे, परसेंटेज निकालते हैं कि आपको 50 में अगर 49 मिला तो आपको कितना परसेंट ऑब्टेन हुआ, तो 49 बाय 50 इंटू 100। सिमिलरली मास परसेंट विल बी मास ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय द मास ऑफ सोल्यूशन, की टोटल कितना सोल्यूशन का मास है, सोल्यूट कितना डाला है, इंटू 100। जैसे हम सिंपल परसेंटेज निकालते हैं। सपोज द मास ऑफ द सोल्यूट इज WA। सोल्यूट का जो मास है वो है WA और सॉल्वेंट का जो मास है वो है WB। सोल्यूशन का टोटल मास कितना होना चाहिए, ऑब्वियसली सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट WA प्लस WB विल बी इक्वल टू W। तो मास परसेंट विल बिकम WA डिवाइडेड बाय W इंटू 100। कुछ भी नहीं है, मैंने इसको बस W और WA WB से डिनोट किया है। सो दिस विल बी योर फाइनल फॉर्मूला ऑफ द मास परसेंट। अब कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। ऑब्वियसली फॉर्मूला को अच्छे से समझने के लिए न्यूमेरिकल्स आर इम्पोर्टेंट। So let us see some numericals. A solution is prepared by adding 5 gram of a substance A to 20 gram of water. तो यहाँ पे हम ये समझ पा रहे हैं ऑलरेडी कि ये जो है हमारा 5 ग्राम सल्यूट का है और वाटर ऑब्वियसली सॉल्वेंट है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, हमें पता है। कौन सल्यूट और सॉल्वेंट आइडेंटिफाई करना पहला स्टेप है क्वेश्चन का। यहाँ पे आइडेंटिफाई हम बहुत इजीली हम कर लिए हैं, तो अच्छी बात है। सो 5 ग्राम ऑफ सब्सटेंस ए, ये सब्सटेंस ए है हमारा सल्यूट, और 20 ग्राम ऑफ वाटर जो कि है हमारा सॉल्वेंट। व्हाट इज द मास परसेंट ऑफ द सल्यूट? मास ऑफ सल्यूट WA है हमारा 5 ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट WB है हमारा 20 ग्राम।
हमेशा याद रखिएगा कि टोटल मास ऑफ द सोल्यूशन हमको निकालना है, सॉल्वेंट और सोल्यूट को अलग करके नहीं, सोल्यूशन का हमको कंसिडर करना है। सोल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली दोनों को ऐड कर देंगे, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, जो हो जाएगा हमारा 25 ग्राम। अब सोल्यूशन मिल गया है हमको, सोल्यूट हमको पता था ऑलरेडी, तो मास परसेंट विल बी सोल्यूट बाय सोल्यूशन इनटू 100, 5 grams divided by 25 grams into 100 which is 20%। मतलब 20% है हमारा सोल्यूट जो कि प्रेजेंट है 100 पार्ट्स ऑफ आवर सोल्यूशन में। तो ये हो गया हमारा मास परसेंट कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन परसेंटेज कितना हो जाएगा इस सोल्यूशन के लिए, हो जाएगा 20% बाई मास। सिर्फ 20% बोलने से कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए 20% बाई मास, क्योंकि यहाँ पे हम सब मास को ही कंसिडर कर रहे हैं। 20% बाई दिस इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन aqueous solution of NaCl has a mass percent of 30%। तो aqueous solution, वाटर है हमारा सॉल्वेंट, NaCl है हमारा सोल्यूट, और मास परसेंट दिया गया है यहाँ पे 30%। इफ द मास ऑफ द सोल्यूशन इज फाउंड टू बी 40 ग्राम, सोल्यूशन का मास हमको दिया गया है, व्हाट इज द मास ऑफ NaCl दैट वाज टेकन। तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ सोल्यूट हमको निकालना है जो कि गिवन नहीं है, मास परसेंटेज से हम अमाउंट ऑफ सोल्यूट निकालेंगे। सेम प्रोसेस रहेगा, सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है कि यहाँ पे हमको परसेंटेज नहीं, हमको अमाउंट ऑफ सोल्यूट निकालना है। तो अमाउंट ऑफ सोल्यूट को हम ले लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं एक्स ग्राम, मास ऑफ सोल्यूशन ऑलरेडी गिवन है और मास परसेंटेज भी गिवन है 30%। सो 30% शुड बी इक्वल टू WA बाई W इंटू 100। ऑब्वियसली वी नो दिस फॉर्मूला। अब यूनिटरी मेथड सिंपली अप्लाई करते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे WA को निकालना है। WA विल बी मास परसेंट इंटू W डिवाइडेड बाई 100। मास परसेंट था हमारा 30, जो मास ऑफ द सोल्यूशन है हमारा 40 ग्राम डिवाइडेड बाई 100, तो हमारा फाइनल आंसर होगा 12 ग्राम्स ऑफ सोल्यूट। 12 ग्राम ऑफ सोल्यूट वाज प्रेजेंट इन दिस सोल्यूशन, इसीलिए इसका जो मास परसेंट है वो 30% आया था। सेम लॉजिक, सेम फॉर्मूला, सेम कॉन्सेप्ट, सिर्फ यहाँ पे जो आपको डिटरमाइन करना है, ये परसेंटेज आपको डिटरमाइन नहीं करना, परसेंटेज आपको दिया गया है, आपको अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिटरमाइन करना है, तो वो हम कर चुके हैं। सेम लॉजिक से ही हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया है। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, ये समझिए कि आपको क्या निकालना है। जो निकालना है उसके अलावा बाकी सारे डेटाज आपको गिवन रहेंगे, कुछ एक्स्ट्रा डेटाज आपको दिए जाएंगे आपको कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन उससे आपको जो एक्चुअल डेटा आपको जरूरत है वो उसको आप यूज करके आप अपनी फाइनल कैलकुलेशन कीजिएगा। और कौन सा सॉल्वेंट है कौन सा सोल्यूट है इसके बारे में आपको एकदम क्लैरिटी रहनी चाहिए कि सोल्यूट जो है सॉलिड रहता है, जैसे शुगर सोल्यूशन या फिर सॉल्ट सोल्यूशन को आप ध्यान में रखिए, ये जो शुगर या फिर सॉल्ट ये है हमारे सोल्यूट, और जो पानी है वो है हमारा सॉल्वेंट। सोल्यूट और सॉल्वेंट में हमेशा क्लियर रहिए कि कौन सा सोल्यूट है और कौन सा है सॉल्वेंट। तो मास परसेंटेज हो गया, अब आता है मास वॉल्यूम परसेंट। मास परसेंट अगर आप समझ गए हो तो आपको ये हेडिंग देख के ही आपको समझ में आ रहा है कि क्या होने वाला है मास वॉल्यूम परसेंट में। Mass volume percent is the amount of solute in mass which is present in 100 parts in terms of volume of the solution। M by V तो solute रहेगा mass के terms में और solution जो रहेगा हमारा volume के terms में। Almost like gram per liter। ग्राम पर लीटर में भी हमने अमाउंट जो सल्यूट का लिया था वो मास लिया था, और सोल्यूशन हमने लीटर्स में या फिर उसका वॉल्यूम लिया था, तो सेम यहाँ पे भी अप्लाई हो रहा है, लेकिन ये होगा परसेंटेज, 100 पार्ट्स परसेंटेज में हम करेंगे। इट एक्सप्रेसेस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन एज द मास ऑफ सोल्यूट टिपिकली इन ग्राम्स पर 100 ml ऑफ द सोल्यूशन। तो ग्राम पर लीटर के साथ ये सेम नहीं है, ग्राम पर लीटर लीटर्स के 1 लीटर में डील कर रहा था, यहाँ पे 100 ml में डील कर रहा है। ग्राम पर लीटर 1 लीटर के रेस्पेक्ट में निकाल रहा था, लेकिन मास वॉल्यूम परसेंट में हम यहाँ पे
100 मिलीलीटर के रेस्पेक्ट में निकालेंगे। तो यही है मेन डिफरेंस। तो कॉन्सेप्ट है वो सेम है, क्योंकि सोल्यूट हम ले रहे हैं मास में और सोल्यूशन ले रहे हैं हम वॉल्यूम में, लेकिन कितना हम सोल्यूशन का वॉल्यूम कंसिडर कर रहे हैं वो डिफरेंट है। ग्राम पर लीटर में 1 लीटर कर रहे थे, अभी हम 100 ml सोल्यूशन को कंसिडर कर रहे हैं। इट इज मोस्ट कॉमनली यूज इन मेडिसिन। घर में कफ सिरप वगैरह रहेगा, जो भी सिरप टाइप के जो मेडिसिन है, आप अगर उसके कॉम्पोजिशन को स्टडी करेंगे आपको देखने को मिलेंगे जो कॉम्पोजिशन हमेशा मास बाय वॉल्यूम के परसेंटेज में या फिर वॉल्यूम वॉल्यूम परसेंटेज में आपको दिया रहता है। सो दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग। आप खुद भी चेक कर सकते हैं, किसी भी कफ सिरप या फिर कोई लिक्विड मेडिसिन का बॉटल लेके आप पीछे कॉम्पोजिशन चेक करिए, तो आपको देखने को मिलेगा कई मेडिसिन में कॉमनली कॉन्सेंट्रेशन ऐसे मास बाय वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में ही वो दिया जाता है, क्योंकि जो मेन आपका मेडिसिन रहता है वो सॉलिड फॉर्म में रहता है, उसको आप एक सॉल्वेंट में जो सिरप बनाता है लास्ट में जो सोल्यूशन बनाता है उसमें आप डिसॉल्व करते हो, तो मास ऑफ द सोल्यूट एंड द वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन। सो दिस इज अबाउट मास वॉल्यूम परसेंट। सिमिलर फॉर्मूला रहेंगे एकदम, मास वॉल्यूम परसेंट, मास ऑफ सोल्यूट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। सेम फॉर्मूलाज है परसेंटेज जैसे हम निकालते हैं, सिर्फ यहाँ पे सोल्यूशन का मास नहीं, सोल्यूशन का जो वॉल्यूम है उसको हम यूज कर रहे हैं। सपोज द गिवन मास ऑफ सोल्यूट इज WA, सोल्यूट को हम WA पकड़ के चल रहे हैं एंड द वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इज V, so it will be WA by V into 100. This is your final formula. फॉर्मूला हम अगर देख लिए हैं तो कुछ क्वेश्चंस भी देख लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। What is the mass by volume percent if 30 gram of sugar is dissolved completely in 50 ml of water? फिर से हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं बहुत इजीली, ये है सॉल्वेंट, ये है हमारा सोल्यूट। तो मास बाय वॉल्यूम हमको निकालना है, तो ऑलरेडी मास दिया गया है सोल्यूट का और वॉल्यूम दिया गया है सॉल्वेंट का। तो दिस विल बी, और द सोल्यूशन का जो कंप्लीट सोल्यूशन बनेगा उसका ही ये वॉल्यूम है। मास ऑफ सोल्यूट इज 10 ग्राम एंड वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इज 50 ml, सो 30 by 50 into 100। यहाँ पे ये 30 ग्राम्स होना चाहिए, मैंने गलती से यहाँ पे 10 ग्राम्स लिख दिया है, क्वेश्चन में 30 ग्राम्स ही है। तो मास ऑफ सोल्यूट है हमारा 30 ग्राम्स और वॉल्यूम है हमारा 50 ml। तो जो नॉर्मल फॉर्मूला हम देख के आए हैं लास्ट स्लाइड में, द मास ऑफ द सोल्यूट 30 ग्राम डिवाइडेड बाय 50 ml ऑफ द सोल्यूशन इनटू 100। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 60% मास बाय वॉल्यूम। ये अगर आप मेंशन कर दे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मास मास परसेंट है, मास बाय वॉल्यूम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तो आप किसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं ये अगर आप मेंशन कर दे तो अच्छा रहेगा। ये 60% है मास बाय वॉल्यूम, क्योंकि यहाँ पे हमने सोल्यूट के मास को यूज किया और सोल्यूशन के वॉल्यूम को यूज किया, और फाइनल हमारा आंसर है 60% मास बाय वॉल्यूम। सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। मास बाय वॉल्यूम परसेंट ऑफ अ सोल्यूट इज 10%। तो मास बाय वॉल्यूम परसेंट जो है दिया गया है 10%। व्हाट इज अमाउंट ऑफ सोल्यूट, फिर से हम अमाउंट ऑफ सोल्यूट निकालेंगे। प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ द सोल्यूशन एंड इन 500 ml ऑफ द सोल्यूशन। तो यहाँ पे हमको दो आंसर्स निकालने हैं। एक हमको निकालना है कि 500 ml ऑफ सोल्यूशन में कितना रहेगा उसका अमाउंट ऑफ सोल्यूट, और 500 में कितना रहेगा। तो पहले अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर आप अच्छे से समझे हो, तो आपको ये लाइन समझ में आ गई होगी पहले ही। 10% मास बाय वॉल्यूम का मतलब ही है कि 10 ग्राम सोल्यूट है इन 100 ml ऑफ द सोल्यूशन। जब हम डेफिनेशंस देख रहे हैं तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया था कि जो एक्सप्रेस करता है वो मास ऑफ सोल्यूट इन 100 ml सोल्यूशन में ही एक्सप्रेस करता है। तो 10% का मतलब है 10 ग्राम सोल्यूट है इन 100 ml ऑफ द सोल्यूशन। तो ये जो पहला क्वेश्चन था कि 100 ml सोल्यूशन में कितना मास होगा, वो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, जो है 10 ग्राम। तो 100 ml में 10 ग्राम सोल्यूट रहेगा, इसका ही मतलब है 10% मास बाय वॉल्यूम। 10% मास बाय वॉल्यूम का ही मतलब है
10 ग्राम्स रहेंगे 100 ml ऑफ द सोल्यूशन में। सिमिलरली यहाँ पे हमने 60% निकाला था, इसका क्या मतलब है? 60 ग्राम सल्यूट और शुगर, 60 ग्राम शुगर इन 100 ml सोल्यूशन। तो जो भी आपका परसेंटेज रहेगा वही हो जाएगा आपका सल्यूट का मास इन 100 ml ऑफ द सोल्यूशन। तो यहाँ पे 10% था, तो हमको ये पता चल गया कि 100 ml में 10 ग्राम्स सल्यूट होते हैं। तो अगर 100 ml में 10 ग्राम्स होते हैं तो 500 ml में कितना होना चाहिए? 10/100 इंटू 500। सिंपल यूनिटरी मेथड। 100 ml में 10 ग्राम्स है तो 1 ml में 10/100 होना चाहिए, एंड 500 ml में 10/100 इंटू 500 होना चाहिए, जो कि आ जाएगा हमारा 50 ग्राम्स ऑफ सल्यूट। 50 ग्राम ऑफ सल्यूट इज आवर फाइनल आंसर। तो 100 ml में 10 ग्राम ऑफ सल्यूट और 500 ml में 50 ग्राम ऑफ सल्यूट है। सेम लॉजिक, सेम कॉन्सेप्ट, आपका जो अप्रोच है वो थोड़ा चेंज होगा, बाकी जो फॉर्मूला वगैरह है वो सारे सेम है। कौन सा कॉन्सेप्ट, कैसे आप अप्रोच करोगे क्वेश्चन को, वो थोड़ा डिफरेंट है, बाकी सब सेम है, एंड इट इज वेरी इजी ऑल्सो। एंड आवर लास्ट कॉन्सेंट्रेशन परसेंट इज वॉल्यूम परसेंट। ऑब्वियसली आई थिंक बाय नाउ आप समझ चुके हो इसमें क्या होने वाला है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। वॉल्यूम परसेंट इज द अमाउंट ऑफ सल्यूट जो कि है अब वॉल्यूम में। अभी तक हमको ये देखने को नहीं मिला था, अभी हम देख पा रहे हैं कि अब ये है वॉल्यूम के टर्म्स में, विच इज प्रेजेंट इन 100 पार्ट्स इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन। ये एक नई चीज अब आई है जहां पे हम सल्यूट को भी वॉल्यूम में ले रहे हैं। ये कब होता है? जब सल्यूट भी लिक्विड रहता है। जैसे आप दो लिक्विड को मिक्स करके एक सोल्यूशन बनाते हैं, जैसे कि अल्कोहल प्लस वाटर इज अ सोल्यूशन, इज अ सोल्यूशन। इथेनॉल C2H5OH प्लस वाटर, तो ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, तो इसलिए आप दोनों का वॉल्यूम कंसिडर कर सकते हो। तो ऐसे सॉल्यूशंस के लिए जिसमें दोनों कंपोनेंट सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही हमारे लिक्विड फॉर्म में है, उसके लिए आप वॉल्यूम परसेंट कंसिडर कर सकते हो, वॉल्यूम वॉल्यूम परसेंट। It expresses the concentration of a solution in terms of volume of the solute relative to the volume of the solvent. तो यहाँ पे सिर्फ वॉल्यूम का ही खेला है, यहाँ पे हम सिर्फ वॉल्यूम को ही कंसिडर करें, सल्यूट का भी और सोल्यूशन का भी, सॉल्वेंट का भी। It is used for solution in which all the components are in liquid state. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हम इससे पहले हम डिस्कस नहीं किए। तो जैसे मैंने मेंशन किया था, ऐसे सॉल्यूशंस के लिए इसको हम यूज करेंगे जिसमें सारे कंपोनेंट्स, सल्यूट, सॉल्वेंट, सारे कंपोनेंट्स लिक्विड स्टेट में रहेंगे। तो ये एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जिसमें सॉलिड सल्यूट यूज हो रहा है उसमें ये वॉल्यूम वॉल्यूम परसेंटेज आप नहीं निकाल पाएंगे, उसमें मास के रिलेटेड में निकालना ही बेटर रहेगा। अगर दोनों कंपोनेंट्स लिक्विड में है तो वॉल्यूम परसेंटेज आप आराम से निकाल सकते हो। फॉर्मूला अगेन फिर से द सेम फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। जैसे मास का था, यहाँ पे अब दोनों वॉल्यूम में है तो दिस विल बी जस्ट वॉल्यूम ऑफ सल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। Suppose the volume of solute will be VA and solvent is VB. So total volume of solution should be VA plus VB equals to V. So the formula will become VA by V into 100. Same formula, similar logic. So फिर से similar कुछ numericals भी देख लेते हैं. A solution is prepared by adding 25 ml of substance A to 75 ml of a substance B. What is the volume percent of A? तो पहली बात तो ये, पहले के क्वेश्चंस में हम सल्यूट और सॉल्वेंट को बहुत इजीली डिटरमाइन कर रहे थे क्योंकि वहां पे शुगर था या फिर कुछ ऐसे टर्म्स थे जो सॉलिड जो थे उसको हम सल्यूट पकड़ के चल रहे थे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऐसे केसेस में जहाँ पे दोनों कंपोनेंट सॉल्यूट भी और सॉल्वेंट भी दोनों जब लिक्विड है, तो ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा है हमारा सल्यूट और कौन सा है हमारा सॉल्वेंट? सो विच इज सल्यूट एंड विच इज सॉल्वेंट? बहुत ही इजी तरीके से पता चलेगा क्योंकि मैंने पहले ही स्लाइड में, पहले ही कुछ स्लाइड्स में मैंने ये बताया था कि जो सॉल्वेंट रहता है वो बल्क फेज में रहता है, वो ज्यादा क्वांटिटी में रहता है।
तो यहाँ पे ज्यादा क्वांटिटी में कौन है हमारा सब्सटेंस बी, 75 ml में है, ज्यादा है वो 25 ml, तो ये है हमारा सॉल्वेंट। और जो कम अमाउंट में प्रेजेंट है वो होगा हमारा सॉल्यूट। तो इस चीज को भी आप ध्यान में रखिए, जब आपको समझ में नहीं आ रहा डायरेक्टली कि कौन सा सल्यूट है और कौन सा सॉल्वेंट है, आप उसके अमाउंट को देखिए। जिसका अमाउंट ज्यादा रहेगा वो ऑटोमेटिकली आपका सॉल्वेंट हो जाएगा, और जो अमाउंट में कम रहेगा वो हो जाएगा आपका सल्यूट। तो अब हमने आइडेंटिफाई कर लिया है कौन सा सल्यूट है कौन सा सॉल्वेंट है, और अब हम निकाल सकते हैं इसका वॉल्यूम परसेंट। Volume of A, which is the solute VA, is 25 ml. Volume of B, which is VB, is 75 ml. Total volume of the solution 25 plus 75 is 100 ml. सब हम निकाल चुके हैं, तो अब वॉल्यूम परसेंट भी निकाल लेते हैं। VA by V into 100, which is 25 by 100 into 100, which is 25% by volume. 25% by volume. 25% by volume. सो बहुत ही इजी है, लेकिन यहाँ पे आपको ये आइडेंटिफाई करना है, यहाँ पे आपको मेंशन है कि व्हाट इज द वॉल्यूम परसेंट ऑफ ए। यहाँ पे ए मेंशन है, तो आपको ऑलरेडी समझ में आ रहा होगा कि ए ही है हमारा सल्यूट। लेकिन ऐसे केसेस में अगर आपको सिर्फ बताया गया कि व्हाट इज द वॉल्यूम परसेंट, यहाँ पे अगर क्वेश्चन खत्म हो गया तो आप कैसे समझेंगे कौन सा सल्यूट है कौन सा सॉल्वेंट है। क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन को तो आपको सल्यूट के रेस्पेक्ट में भी निकालनी होगी, क्योंकि अगर आप वीबी गलती से अगर आपने वीबी को अपने सल्यूट पकड़ लिया 75 ml का, तो आपका आंसर 75% आ जाएगा, जो कि गलत होगा, जो कि होगा पूरा गलत। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई द सल्यूट। तो आप कैसे करोगे, जिसका अमाउंट कम रहेगा वही होगा आपका सल्यूट। तो ये चीज यहाँ पे ध्यान में रखने के लायक है। Again, let us see the second question. A solution is composed of 4 liquid components. यहाँ पे तो कुछ मजेदार हो रहा है, क्योंकि अभी तक हम 2 कंपोनेंट्स को लेकर चल रहे थे, यहाँ पे तो 4 कंपोनेंट्स हो गए हैं। 4 liquid components P, Q, R and S. And the total volume of the solution is 300 ml. अच्छी बात है, टोटल वॉल्यूम सोल्यूशन का हमको दिया गया है 300 ml. If the volume percentages of P is 60%, P का वॉल्यूम परसेंट है 60%, what is the volume of P that was added to the solution? अमाउंट ऑफ P हमको यहाँ पे निकालनी है। तो मतलब P हमारा सल्यूट के हिसाब से काम कर रहा है। तो ये जो PQRS है, इतना दिमाग हमें लगाना ही नहीं है। हमें जैसे बहुत सारे मैंने बताया, किसी भी क्वेश्चंस में आपको कंफ्यूज करने के लिए बहुत सारे डेटा दिए जाएंगे, बहुत सारे वैल्यूज, बहुत सारे ABCD, लेकिन आपको फोकस करना है कि आपको क्या निकालना है, सिर्फ उसको यूज करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, P का वॉल्यूम, जो कि हम XML करके मान रहे हैं। टोटल वॉल्यूम हमको पता है 300 ml। P का जो वॉल्यूम परसेंटेज है वो 60% है, तो VP बाई V इंटू 100 शुड बी 60%। बाकी QRSTUV जो भी फलाना ढिमकाना जो भी रहे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ यहाँ P का निकालना है ऑब्वियसली, इसलिए हम सिर्फ P पे ही फोकस करेंगे। तो P का दिया गया है वॉल्यूम परसेंट 60%, तो VP बाई V इंटू 100 शुड बी 60। तो VP शुड बी 60 इंटू V बाई 100, जो कि आपका हो जाएगा 180 ml। मतलब जो P कंपोनेंट था वो आपका यूज हुआ था 180 ml। मतलब ये जो 300 ml टोटल सोल्यूशन था, उसमें P था आपका 180 ml। तो और बाकी जो 300 माइनस 180 थे, बाकी QRS को मिला के वो वॉल्यूम थी। तो हमें दिमाग ही नहीं लगाना, क्योंकि हमें जो निकालना था हम निकाल चुके हैं, जो कि था P का वॉल्यूम। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कॉन्सेंट्रेशन परसेंटेज। जैसे कि बहुत ही लंबा टॉपिक था काइंड ऑफ, बट इट वाज वेरी इजी। एक ही कॉन्सेप्ट बार बार रिपीट हो रहा था, सिर्फ जो अमाउंट है, जो यूनिट्स है, वो चेंज हो रहे थे। मास परसेंट में मास बाय मास, सल्यूट का भी मास, सोल्यूशन का भी मास। मास बाय वॉल्यूम परसेंट में सल्यूट का मास और सोल्यूशन का वॉल्यूम, और वॉल्यूम वॉल्यूम परसेंट में सल्यूट का भी वॉल्यूम, सोल्यूशन का भी वॉल्यूम। तो दिस वाज ऑल अबाउट कॉन्सेंट्रेशन परसेंटेज की। कॉन्सेंट्रेशन को आप परसेंटेज के फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करेंगे।
उसके भी 3 टाइप्स हमने देख लिए। एंड लास्टली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक विच इज मोल फ्रैक्शन। इससे काफी सारे क्वेश्चंस आपके आते हैं, इस चैप्टर से आते हैं, लेकिन सॉल्यूशंस वाला जो चैप्टर है जो श्रुति मैम करवाई है उसमें भर भर के मोल फ्रैक्शन को यूज करके कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के साथ मिक्स करके शी हैज ऑलरेडी डिस्कस्ड ऑल दिस। तो उस चैप्टर में मोल फ्रैक्शन का बहुत बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सॉल्यूशंस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सॉल्यूशंस। इस चैप्टर में शायद उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन इसमें क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, और डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हैं सोल्यूशन वाले चैप्टर में। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो चैप्टर्स मेंशन करके नहीं आएंगे, आपको रैंडमली क्वेश्चंस दिखेंगे, तो वहां पे आपको मोल फ्रैक्शन से क्वेश्चंस मिलेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सोल्यूशंस। I think Shruti ma'am has already discussed what is mole fraction and everything, but still I will also discuss with you क्योंकि इस चैप्टर में भी आपको इसको स्टडी करना है। Mole fraction is the ratio of the number of moles of one component of a solution to the total number of moles of the solution. तो मोल फ्रैक्शन जो है, फ्रैक्शन है ये एक न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन को आप रेशियो भी कह सकते हो, तो आप एक रेशियो भी कह सकते हो। सो क्या रेशियो क्या है, न्यूमरेटर में कौन रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट। किसी भी एक कंपोनेंट का सोल्यूशन में दो कंपोनेंट तो मिनिमम होते ही है, दो से ज्यादा तीन चार पांच कुछ भी हो सकता है। एक कंपोनेंट का जो नंबर ऑफ मोल्स है वो रहेगा हमारा न्यूमरेटर, डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूशन, ये रहेगा हमारा डिनोमिनेटर। टोटल जो मोल्स है पूरे सोल्यूशन का जो मोल है वो रहेगा हमारा डिनोमिनेटर। Suppose a solute A dissolves in a solvent B, then the mole fraction of A would be denoted by XA and the mole fraction of B will be denoted by XB. तो यहाँ पे देखिए सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के लिए हम मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन के साथ। डू नॉट कंफ्यूज विथ कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन के साथ इसका ऐसा डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। कॉन्सेंट्रेशन में जैसे हम सिर्फ सल्यूट के रेस्पेक्ट में कॉन्सेंट्रेशन निकाल लेते हैं कि कितना सल्यूट है कितना सल्यूट है, लेकिन मोल फ्रैक्शन हम सल्यूट का भी निकाल सकते हैं सॉल्वेंट का भी निकाल सकते हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन में सिर्फ सल्यूट है इसलिए मोल फ्रैक्शन में भी सिर्फ सल्यूट का होगा, ऐसा नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा कि कॉन्सेंट्रेशन के साथ आपको कंफ्यूज नहीं करना है। So this is one important point to be noted in mole fraction कि इसमें सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का ही आप मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो। तो अब फॉर्मूला देख लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए लेट्स टेक इट एज n, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी लेट्स टेक इट एज nb। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने होने चाहिए, Na प्लस nb, सिंपल सल्यूट प्लस सॉल्वेंट। लेट A बी द सल्यूट एंड B बी द सॉल्वेंट। सल्यूट प्लस सॉल्वेंट करने से हमें टोटल नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मैंने क्या बताया था, एक कंपोनेंट का मोल डिवाइडेड बाय द टोटल सोल्यूशन का मोल। ए का मोल फ्रैक्शन डिनोट करेंगे हम एक्स ए से, जो हो जाएगा एन ए बाई एन ए प्लस एन बी। एन ए था ए का नंबर ऑफ मोल्स एंड एन ए प्लस एन बी इज द टोटल। सिमिलरली ये हो गया हमारा सल्यूट। सॉल्वेंट के लिए भी हम निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन जैसी बात नहीं है कि सिर्फ सल्यूट को लेके ही हम सब कुछ करेंगे, नहीं, यहाँ पे सॉल्वेंट का भी आप निकाल सकते हो। एक्स बी विल बी एन बी, सॉल्वेंट का जो मोल था डिवाइडेड बाय द टोटल। और ये चीज हमेशा आपको ध्यान रखनी है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1। वेरी इंपॉर्टेंट। अगर दो से ज्यादा कंपोनेंट्स है, अगर तीन कंपोनेंट्स है एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी प्लस एक्स डी, जो भी है जितने भी कंपोनेंट्स है, टोटल कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन को आप अगर आप ऐड करेंगे तो उसका वैल्यू हमेशा आएगा 1। तो ये भी एक चीज आपको ध्यान में रखना है
क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हम फ्रैक्शंस एक ही कंप्लीट चीज का अगर हम फ्रैक्शन फ्रैक्शन निकाल के उसको फाइनली अगर हम ऐड करें तो हमको वन ऑब्टेन होता है। तो सिमिलर लॉजिक फ्रैक्शंस के चैप्टर में मैथ्स मैथ्स की बात है, ये आशीष सर का जोन है, तो मैं ज्यादा नहीं जाऊंगी। लेकिन फ्रैक्शंस में जैसा होता है कि फ्रैक्शंस को आप ऐड करते हो, सेम होल नंबर्स का फ्रैक्शन अगर निकाल के आप ऐड करते हो तो वन आता है। तो सिमिलरली मोल फ्रैक्शन में भी सेम कॉन्सेप्ट फॉलो होगा। अब कुछ क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। बहुत ही इजी है मोल फ्रैक्शंस, बट क्वेश्चंस करना बहुत जरूरी है। सो लेट अस सी सम क्वेश्चंस क्विकली। Number of moles of A is 5 and B is 3. What are the mole fractions of A and B? Number of moles of A Na is 5 and B is 3. Total number of moles is 5 plus 3, 8. A का कितना मोल फ्रैक्शन होना चाहिए? 5/8। और B का कितना होना चाहिए? यहाँ पे आप इसको भी कर सकते हो, 3/8 भी कर सकते हो। सेम वैल्यू आपको ऑब्टेन होगा, या फिर आप 1 से सब्ट्रैक्ट करके भी निकाल सकते हो, क्योंकि आपको पता है XA plus XB is equal to 1। आप दोनों वेज में कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, पहले 5 ÷ 8 करके मैंने मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकाल लिया, फिर 1 से मैंने माइनस करके मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकाल लिया। यू कैन ऑल्सो डू इट बाई 3/8, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी वाज 3 एंड द टोटल मोल्स इज 8। सेम आंसर यू विल गेट। सो दिस इज द फर्स्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। लेट अस सी द सेकंड क्वेश्चन। The solution is made by mixing 2 moles of alcohol in 90 grams of water. So what is the mole fraction of alcohol and water? यहाँ पे तो मोल्स दिया ही नहीं गया है, यहाँ पे तो फिर वाटर का मास आ गया है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे? ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करेंगे वो हम नेक्स्ट लेसन में डिस्कस करेंगे। सो फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स ये सोल्यूशन मैंने सॉल्व करके रखा है, इसको आप देख सकते हो, बट आई विल एक्सप्लेन दिस इन द नेक्स्ट लेसन। ऐसे क्वेश्चंस में जहां पे आपको डायरेक्टली मोल्स नहीं दिया जाएगा, जैसे इस फर्स्ट क्वेश्चन में बहुत सिंपल था एकदम, हमने मजे मजे में क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली नंबर ऑफ मोल्स दिए गए हैं डायरेक्टली, और हमें मोल फ्रैक्शन ही निकालना है। तो हमें पता है कि मोल्स जब दिए जाते हैं तो मोल फ्रैक्शन हम कैसे निकालते हैं। लेकिन जब मोल्स नहीं दिए जाते, इस केस में एक मोल दिया गया है, लेकिन जो सॉल्वेंट का मोल है वो हमको दिया गया नहीं है। द मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इज मिसिंग। इंस्टेड यहाँ पे हमको उसका मास दिया गया है। तो इस मास से हम कैसे मोल्स निकाल के ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। मास की जगह यहाँ पे वॉल्यूम भी हो सकता है, यहाँ पे भी इसका मास हो सकता है। तो ऐसे केसेस दोनों के मास ही दिए जा सकते, कोई मोल का मेंशन ही नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी वैसे क्वेश्चंस में भी मास को यूज करके, वॉल्यूम को यूज करके भी हम मोल्स निकाल सकते हैं। यू आर गेटिंग द हिंट ऑफ ऑब्वियसली मोल फ्रैक्शन विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके ऊपर ये पूरा चैप्टर बेस्ड है। तो मोल फ्रैक्शन को अब हम यूज करके मास को मोल्स में कन्वर्ट करके फिर हम मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। कैसे निकालते हैं वो कैसे करते हैं, दैट आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेसन। So thank you everyone for being a part of today's lesson. I hope it was informative, it was something new, and I hope you are eager for the next video जहां हम ऐसे type of questions solve करना सीखेंगे. So I would like to request you all to join our World of Mentors Galaxy and to subscribe our YouTube channel and follow our Instagram page. You will have regular classes on various topics. हमने already chapter series start कर दी है maths के लिए, chemistry के लिए. So you will get regular classes and you will get some engaging and exam hacks on shorts and reels. And definitely we will have separate problem solving and doubt clearing sessions. आपके जो doubts रहेंगे competitive exams के questions solve कराने के लिए अलग videos भी आपको मिलेंगे in Mentors Galaxy. So I would like to request you all to join our world of Mentors Galaxy. If you have not subscribed already, please subscribe to our YouTube channel and follow our Instagram page. Stay tuned for more updates of Mentors Galaxy. Thank you so much.